Today I am going to cover the topic arithmetic progression of class 10. What is arithmetic progression? Any series, continuous series which has the same common difference like this. This is an arithmetic progression जिसमें डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स हमेशा सेम रहता है, ऑलवेज रिमेन्स द सेम. दिस series is called the arithmetic progression. Here, this is the first term of series and denoted by A or A1. Common difference D. Here D is 4 minus 2 which is equal to 2. 6 minus 4 which is equal to 2. जब भी हम आगे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करते हैं तो जो भी डिफरेंस आता है या कुछ, दैट इज द कॉमन डिफरेंस. एग्जाम्पल ऑफ सीरीज लाइक 1, 2, 3, 4. दिस इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्योंकि हर नंबर जो है वो 1 के डिफरेंस पे इंक्रीज हो रहा है. जब डिफरेंस सेम होता है दो नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, तब उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और एग्जांपल्स जैसे 100, 70, 40, 10. This here, this is 100 is the first term. A1 is 100. This is called the first term of the series. कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आप देखोगे, डिफरेंस जो है बिटवीन टू नंबर्स इज 30 एंड इट इज सेम एवरीवेयर. सो दिस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एक एग्जांपल, हियर दिस इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यहाँ पे -3 इज द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, -2 माइनस ऑफ -3 विच इज -2 plus -2 विच इज इक्वल टू 1. सो हर नंबर के बीच में देखोगे कि कॉमन डिफरेंस इज 1. सो दिस इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. This is also another example of arithmetic progression. 3 is the first term and what is the common difference? Common difference is 0. So here everywhere D is 0. So this is also an example of arithmetic progression. D can also negative also, like here 4 is the first term and what is the common difference? 3 minus 4 which is equal to -1. So this is also an arithmetic progression. Difference is also always -1. Some arithmetic progression, there are two types of arithmetic progression, finite and infinite. There are two types of arithmetic progression, finite and infinite. Finite में होता है हमारा लास्ट टर्म जो हमारे को पता होता है. अगर मैं इसको लिखूं -4, 3, 2, 1, 0, मैं 0 पे इसको खत्म कर देती हूँ. सो दिस इज अ फाइनाइट सीरीज. हमें लास्ट टर्म फाइनाइट सीरीज का पता होता है. दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट सीरीज. लेकिन अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ और इसको ले जाती हूँ आगे तक, तो यहाँ पे मेरे को आगे लास्ट टर्म नहीं पता,
दिस इज एन ओपन सीरीज, तो दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें हम वी डोंट नो द लास्ट टर्म. लेट मी क्लियर यू विथ वन मोर क्वेश्चन. दिस इज अ गिवन सीरीज. राइट द फर्स्ट टर्म of this series and common difference. So first term of this series is this. So first term A1 is 3 by 2. Write the common difference. Common difference D. वो कैसे लिखेंगे हम? Second term minus first term, which is equal to minus 2 by 2, which is equal to minus 1. So this is the common difference. You can also check whether D is same everywhere or not. So you can minus this also. Minus half. This term minus this term. So this is equal to again minus half. Minus 1. You can also check here also. Minus 3 by 2 minus 1 by 2, which is equal to minus 3 by 2 plus minus plus 1 by 2, which is equal to 2 minus 3 plus 1, which is equal to minus 2 by 2, again minus 1. Okay, so we are getting minus 1 everywhere same. So this is an arithmetic progression and common difference is D. Let me take another example. Here the question is, write the first you have to check whether this is in AP or not. So how can we check this series is in AP? AP means arithmetic progression. In short we say AP. So here let me check the common difference. Subtract second with this 10 minus 4, which is equal to 6. Let's check. 16 minus 10, which is equal to 6. Again check. 22 minus 16. This term minus this term, which is again equal to 6. So this 6. So everywhere same. So common difference is D. So this is an arithmetic progression. Now our next question is, write the next two terms of this series. How can we write the next two terms of this series? जब common difference same है हर जगह, तो हम इसमें हम 6 ऐड कर रहे हैं, हमें next term मिल गया. इसमें हम 6 ऐड कर रहे हैं, हमें next term मिल गया. इसमें हम 6 term ऐड कर रहे हैं, हमें next term मिल गया. तो next term हमें कैसे मिलेगा? 22 plus 6, which is equal to 28. So this is the next term. जैसे जैसे हमारे नंबर्स की पोजीशंस होती है, जैसे यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, तो हम A1 बोलते हैं. दिस इज द सेकंड पोजीशन, तो हम A2. दिस इज द थर्ड पोजीशन, तो A3. दिस इज नेक्स्ट पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, तो दिस इज A4. नेक्स्ट आएगी हमारी A5, A6, A7. अब हमें दो टर्म्स और निकालनी है. हमने A5 निकाल लिया, अब हम A6 कैसे निकालेंगे? Means 6th term 28 plus the common difference, which is equal to 34. So this is the 6th term of the AP. ऐसे हम आगे के terms A7, A8 जो भी हमें निकालना है, बोला है निकालने के लिए क्वेश्चन में, हम ऐसे निकालते जाएंगे. Now we take this question. Find 4 terms of AP where A is equals to minus 1.5 and D is equals to minus 0.25. हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालना है. तो A हमारा ये हो गया, मीन्स A1. A2 is A1 plus D, which is minus
-1.25 प्लस डी -0.25 विच इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा सब आएगा, हमें नेगेटिव में जा रहे हैं तो हम पीछे जाएंगे, तो दैट इट विल बिकम -1.50। अब हम निकालेंगे A3 विच इज अगेन A2 प्लस D, दिस इज इक्वल टू -1.50 प्लस -0.25, this is equal to -1.75. A4 is equal to -1.75 plus -0.25 which is equal to -2.00. So इस तरह से हम टर्म्स निकाल लेंगे. Now we will take this question. Find whether the following is in AP or not. Our question is the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. It says कि फर्स्ट टर्म हमारा जब टैक्सी चल रही है उसकी फर्स्ट जो है वो पहले किलोमीटर के लिए ₹15 है. अब आगे जैसे जैसे एक एक किलोमीटर बढ़ता जाएगा वो हमारे पास ₹8 हर किलोमीटर के लिए ऐड करते जाएंगे. जैसे 15 नेक्स्ट होगा हमारा 15 प्लस 8, फिर नेक्स्ट होगा हमारा 15 प्लस 2 इंटू 8, फिर नेक्स्ट होगा 15 प्लस 3 into 8 and so on. So this gives 15. 8 plus 15 is 23. 15 plus 8 to the 16. 16 plus 15 is 31. 15 plus 24 is 39. So this gives me AP. This is in AP or not? Yes, it is in AP. That here first term is 15 and the common difference is 8. So this is in AP. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वो सीरीज बनाओ और चेक करो कि एपी में है या नहीं, जब अगर वैक्यूम पंप एक सिलेंडर में से उसकी 1/4 ऑफ एयर पंप कर देता है, पंप आउट कर देता है. तो अगर मेरे पास, मैं मान के चलो मेरे पास एयर है उसकी 1/4 निकल गई, तो 1 माइनस 1/4 में निकल गई तो मेरे पास कितनी रही? 3/4. हर बार मेरे पास पहले से उसकी 3/4 एयर रह जाएगी. तो मेरी सीरीज क्या बनी? 1 3/4, 1/4 इसकी पंप आउट हो गई. अब इसकी 1/4 इसकी पंप आउट हो गई तो मेरे पास इसकी कितनी बची? 3/4. तो 3/4 ऑफ 3/4 पिछले वाले से उसकी 3/4 बची, और फिर से मेरे पास इससे इसकी 3/4 बची. इस तरह से मेरी सीरीज आएगी. अब मेरे को चेक करना है कि ये एपी में बनी है कि नहीं. ये क्या बन गया? 3/4 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 3/4 का होल क्यूब. अब मैं इसका देखना है, इसका डी जो कॉमन डिफरेंस है बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर सेम है कि नहीं है. जैसे मैंने इसका करा 3/4 - 1, तो मेरा डी क्या आया?
3 माइनस 4/4 विच इज इक्वल टू -1/4। अब मैं नेक्स्ट में चेक करूंगी कि मेरा डी क्या आ रहा है। 3/4 का होल स्क्वायर -3/4 which is equal to 9/16 minus 3/4 which is equals to 16, 9 minus 12 which is equals to -3/16। तो मेरा D इधर इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो -1/4 आया है, इन दोनों का जो डिफरेंस आया है -3/16 आ रहा है। So -1/4 is not equal to -3/16. So this series is not in AP. और ये मैं आपको अब यहाँ टिप देना चाहती हूँ, जब भी हमारी सीरीज इस टाइप में होती है जिसमें हमारे पावर्स में नंबर्स इंक्रीज होते हैं, ऐसी सीरीज हमारी एपी में नहीं होती है। लेट मी टेक दिस एग्जांपल a square, a cube, a4 and we have to check कि ये जो सीरीज है this is in AP or not. So D is a square minus a. This is a into a minus 1. Here D is a cube minus a2 a square which is equals to a square a minus 1. So this a into a minus 1 is not equal to a square into a minus 1. So यहाँ पे हमारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। दिस इज a2 minus a1 and this is a3 minus a2. तो ये हमारे दो डिफरेंस हैं, ये हमारे सेम नहीं आ रहे हैं। सो दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। इस टाइप की जो सीरीज होती हैं जिसमें पावर्स बढ़ती जाती हैं, दे आर नॉट इन एपी। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगी। दिस इज द सीरीज 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √2 and so on. Here first term is 3. अभी हमें चेक करना है कि डिफरेंस हमारा सेम आता है या नहीं। तो a2 minus a1 करेंगे which is 3 plus √2 minus 3 which is equal to 3 0 हो गया, बचा हमारे पास √2. Now a3 minus a2 which is 3 plus 2 √2 minus 3 plus √2 which is equal to 3 plus 2 √2 minus 3 minus √2. अब 3 से 3 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 √2 minus √2 क्या होगा? जब हम ऐसे रेडिकल्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 2 है और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 1 है और ये हमारा सेम होना चाहिए, तभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 √2 minus 1 √2 which is equals to 1 √2 which is, हम उसको 1 √2 को हम 1 नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ √2 लिख के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा √2 आया है और यहाँ पे भी हमारा √2 आया है। हम आगे एक और चेक कर लेते हैं, a4 minus a3 which is equal to 3 plus 3 √2 minus 3 plus 2 √2. This is equal to 3 plus 3 √2 minus 3 minus 2 √2. अब यहाँ पे अगेन 3 से 3 से 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 √2 minus 2 √2 which is equals to 3 में से 2 which is equals to 1 √2 again which is √2. तो यहाँ पे हमारा सेम आ रहा है, डिफरेंस डी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो दिस सीरीज इन एपी। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, √2, √8, √18, √32। अब ये बताना है मुझे कि इस एपी में है या नहीं। यहाँ पे हमारे बेसिस अलग अलग हैं, तो हमें पहले इसको लोएस्ट टर्म में लाने पड़ेंगे। जैसे ये √8, √2, ये
2 का स्क्वायर इंटू 2, ये 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये मेरी हो जाएगी √2। 2 मेरा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, इससे 3 बाहर आ जाएगा, इससे 4 बाहर आ जाएगा। ये सीरीज मेरी इसमें कन्वर्ट हो गई है। अब आप आसानी से देख सकते हो कि दिस इज एन एपी, क्योंकि हर एक इंक्रीज हो रहा है। जैसे 2√2 माइनस √2 विच इज अगेन √2, 3√2 माइनस √2 which is again √2. So common difference here is again same. So this series is in AP. Thank you guys. If you like the video, hit the like button, and if you have any queries, post it in the comment box. In the coming video, I'll discuss about nth term and sum of arithmetic expression. Bye guys.